continue with the 3.2. The last two questions we were left, that is the question number 8 and 10, because 9 we have already solved. So the 8th question is 11852. In this AP, which term is minus 151? This is 151. So 11852. In this AP, which term means it is to be asked to you that at what position, means if we will continue with this AP, okay, if we will continue this AP, so at which position this minus 151 will come, okay, because 11 is T1, 8 is T2, 5 is T3, 2 is T4. So at what position, like at what position this minus 151 will come? So our AP is like that. AP is 11, 8, 5, 2, and we have to find out this minus 151, which is the last term of this AP. It will come to which position? Okay. So basically we have to find out here n, value of n. हमको ये मालूम करना है कि n किस पोजीशन पर, ये किस पोजीशन पर है, n की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है. So as per the AP, A is 11, okay, and we know that T1 is also 11, T2 is 8, then T3 is 5, and T4 is 2. Tn is minus 151. This is the condition, okay, कि आपका जो Tn है वो minus 151 है, but we don't know the value of n. Okay, first we will find out the common difference. T2 minus T1. We find out the common difference as it is already AP. 8 minus 11. So you will get minus 3. Okay, because 8 minus 11 means we are subtracting bigger number from the smaller number. So we get the answer in minus form. Again we can find out T3 minus T2. So 5 minus 8, that is also minus 3. Okay, so therefore D is minus 3. So we have the value of A, value of B, value of Tn. So basically we have to find out therefore what will be the n. Okay, so we will use the formula. हम formula use करेंगे. Tn is equal to A plus n minus 1 D. Okay, so Tn is minus 151, A is 11, n we don't know, D is minus 3. Remember this is minus 3, so be careful. Okay, now this 11 we will take to the left hand side, so it will become minus 151 minus 11, because 11 we go there, it will become negative, is equal to n minus 1 into minus 3. Okay, so here we will add, because minus 151 minus 11 will add this number. So 1 plus 1 2, 5 plus 1 6, 1 minus 162 is equal to n minus 1 into minus 3. Okay, you can multiply this number to this. Okay, we will just open the bracket. So minus 162 is equal to, or you can do like that, you can take this minus 3 from multiplication form to division form. So it will come minus 3 is equal to n minus 1. Instead of opening the bracket, we will take this 3 from multiplication form to division form. So it will be like that. So we will minus minus will cancel. 3 5s are 15, 3 4s are 12. So 54 is equal to n minus 1. So 54, this plus 1, again we come to the left hand side. It will become 55. So we can say that what is the value of n? 55. So what was the question? Which term is minus 151? So you can write down the answer 11, 8, 5, 2. In his AP, minus 151 is 50th term. Okay,
50th term. The question has been asked you, which term is minus 151? So 55th term is this AP. Okay, so just take a screenshot. बहुत सिंपल है, आपको यहाँ पर सिर्फ ये देखना है कि आपको क्या क्या दिया हुआ है. The last term is minus 151. So whatever will be the last term, that will be the value of Tn. Okay, बाकी तो आपको पता है कि फर्स्ट टर्म आपका A होता है. We'll take the difference, so that will be the D. So we have taken out the D also. हमको n मालूम करना था. We put the values. हमने सबसे पहले 11 को क्या किए, फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड वी शिफ्टेड फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड टू राइट हैंड साइड. 11 का माइनस 11 हो गया है, माइनस माइनस विल बिकम प्लस, so we got minus 162. Then we brought this 3 from left hand side to right hand side in the division form. We cancelled it, we got 54. Then we brought minus 1 from left hand side to right hand side, we got 55 as our answer. Okay, so here minus 151 is the 55th term of the AP. Take a screenshot, then we'll do the last question, because 8th question we solved right now. 9th question, the question I gave you, that how many numbers are divisible by 4. So we solved it already in the previous lecture. Okay, so now the last question of this exercise is, that is a 10th question. इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन इट इज. आपको यहाँ पर इक्वेशन फॉर्म करना है. ओके, द क्वेश्चन इज, इन एन एपी in an AP 17th term means T17, 17th term is 7 more than its 10th term means T10, 10th term. Find the common difference. You have to find out the common difference means D. आपको यहाँ पर D find out करना है. Okay. In an AP 17th term is 7 more than its 10th term means यहाँ पर देखो एक इक्वेशन फॉर्म हो रहा है. ओके, आपको पता है, आपने क्वाड्रेटिक इक्वेशन में देखा था दैट हाउ टू फॉर्म द इक्वेशन, कि इक्वेशन कैसे बनाई जाती है. तो बेसिकली हमको यहाँ पर कुछ वैल्यूज नहीं दी है कि 17 टर्म ये है. जैसे हमने क्वेश्चन अभी सॉल्व किया था इसी में 3.2 में 6 क्वेश्चन कि T21 इतना है, T19 इतना है, देन फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ T41. सच टाइप ऑफ क्वेश्चन हैज नॉट बीन आस्क्ड. ओके, आपसे यहाँ पर क्या पूछा है, आप एक कंडीशन दिया हुआ है, आपको कुछ पता नहीं है. ओके, तो फर्स्ट विल सपोज first term is A and common difference is D. Thus this much. Suppose first term is A and common difference is D. Therefore, now as per the condition, as per the question, अब कंडीशन क्या दिए हुआ है आपको, 70 term means T17 is 17 term. T17 is equal to, okay, is 7 more. 7 more means 7 plus is 17 term. T17 is equal to 7 more 7 plus its 10th term T10. This is the condition कि जो आपकी 17 टर्म है वो इक्वल है 7 मोर देन द 10th टर्म. तो यहाँ पर हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, T17 is equal to T10 plus 7. Okay, now we will use the formula, Tn formula we will use. Okay, Tn is equal to A plus n minus 1D. Okay, so first we will use the formula. कैसे यूज करेंगे, A plus n minus 1, n means 17, 17 minus 1, n minus 1 होता है ना हमारा, A plus n minus 1D. So 17 minus 1D is equal to T10 means A plus 10 minus 1D
प्लस 7। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आप यहाँ पर अलग से कर लो। मैं यहाँ ब्रैकेट में लिखती हूँ T17 is equal to A plus n minus 1 D. Put the value T17 is equal to A plus 17 minus 1 D. So T17 is equal to A plus 16 D. ओके, ये इस तरीके से आप यहाँ पर साइड में कर सकते हैं अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है। देन पुट द वैल्यू। ओके, तो यहाँ पर ये हो जाएगा A plus 17 minus 1 D. So A plus 16D is equal to A plus 9D, okay, plus 7. Okay, now what we'll do, this like terms है ना, हम ये इसको उधर लेकर चले जाएंगे, 7 को इधर ही रहने देंगे, because to the left hand side we have only A and D, so we'll take this A and D to the left hand side. Okay, so A plus 16D minus A minus 9D is equal to 7. Now plus A minus A will cancel. Now 16 minus 9, you will get 7. 7D is equal to 7. D is equal to 7 upon 7. You will get D is equal to 1. So आपसे यही पूछा था, what is common difference? Find the common difference. So you got. Okay, ये आपको मिल गया. D is equal to 1. बहुत easy है, आपको बस ध्यान देना है कि आपको किस तरीके से इक्वेशन को फॉर्म करना है। ओके, तो यहाँ पर ये बोला था आप लोगों से, इन एन एपी 17 टर्म इज, आपको थोड़ा सा सेंटेंस पर कंसंट्रेशन देना होगा, देन इट इज वेरी इजी टू फॉर्म द इक्वेशन, बिकॉज दिस इज वेरी मच इंपॉर्टेंट इक्वेशन। अगर आप ये फॉर्म कर लेते हैं देन ओनली यू विल बी एबल टू सॉल्व द इक्वेशन। ओके, तो 17th टर्म इज, तो हमने लिखा था T17 is equal to 7 more 7 plus its 10 term T10. ओके, फिर हमने क्या किया, हमने फॉर्मूला यूज किया। ठीक है, T17 था तो हमने फॉर्मूला यूज किया, Tn का फॉर्मूला यूज किया है A plus n minus 1D, जहाँ हमने n की वैल्यू जो है यहाँ पर 17 और 10 हमने रखी है, और उसके अकॉर्डिंगली मैंने यहाँ पर साइड में आपको सॉल्व करके बताया है दैट हाउ टू सॉल्व। ओके, यस Gaurav, do you have any doubt? You can ask. Unmute yourself. Gaurav. टीचर वो 16 का फिर से समझाओ ना। ओके, मैं समझा देती हूँ दोबारा से। ठीक है, देखते हैं हाउ टू सॉल्व। देखो यहाँ पर मैं ना आपको अलग से पूरा सॉल्व करने के लिए बता रहा हूँ। देखो जो T17 था तो मैंने फॉर्मूले, यस मैम मुझे फिर से समझाना, फिर कोई ना ये समझाना, फिर से समझाना मेरे को। हाँ समझा रही हूँ मैं, आप देखो ना इधर T17 जो था उसको मैंने फॉर्मूले में रखा है, पहले आप इसको समझ लो फिर मैं पूरा दोबारा समझा दूंगी। T17 जो है वो मैंने फॉर्मूले में पुट किया है A plus n minus 1D। ठीक है, अब ये जो 17 है ना ये n की वैल्यू है, क्योंकि ये n का फॉर्मूला है, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, T17 इज इक्वल टू, हमको a नहीं पता है तो हम सिर्फ a लिखेंगे, n पता है हमें दैट इज 17, 17 माइनस 1D, 17 में से 1 जाएगा 16 बचेगा, T17 इज इक्वल टू a प्लस 16D। ये हमारा आ गया T17 का, है ना। अब ऐसे हमको T10 के लिए सॉल्व करना है, T10 के लिए a प्लस n माइनस 1D। अब n की वैल्यू मैं यहाँ पर 10 रख दूंगी, T10 इज इक्वल टू a प्लस 10 माइनस 1D, तो यू विल गेट a प्लस 9D। ओके, यहाँ पर आपको मिल गया T10 की वैल्यू a प्लस 9D। ठीक है, मैंने यहाँ पर सॉल्व किया, T17 को मैंने सॉल्व किया तो मुझे क्या मिला, a प्लस 16D। तो यहाँ आ गया a प्लस 16D सॉल्व करने के बाद। अब मैंने T10 को सॉल्व किया तो मुझे क्या मिला, a प्लस 9D, तो यहाँ पर आ गया a प्लस 9D प्लस 7। अब उसके बाद मैंने क्या किया है, a को और 9D को राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड पर लेकर गई हूँ। जब मैं वहां लेकर गई हूँ तो यहाँ पर क्या हुआ, ये प्लस a और माइनस a कैंसल हो गया, 16 माइनस 16D माइनस 9D कितना हुआ, 7D हुआ।
तो 7d इज इक्वल टू 7 आया और d की वैल्यू 7/7 दैट इज 1, ये आई है। देखो ऐसे आपको सॉल्व करना है, बहुत सिंपल है, बहुत सिर्फ इम्पोर्टेंट क्या है ये आपको बनाना आना चाहिए। आपको थोड़ा क्वेश्चन पर ध्यान देना होगा। इन एन एपी 17th टर्म इज, तो हमने लिखा 17 टर्म इज T17 इज इक्वल टू 7 more 7 plus its 10 टर्म T10। ओके, इस तरीके से ये रखा है मैंने। उसके बाद इसको मैंने देखो साइड में पूरा सॉल्व किया है। यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट। आई होप द डाउट हैज बीन क्लियर्ड। गौरव, आपको समझ में आया ये कैसे सॉल्व हुआ है? देखो इस तरीके से साइड मैंने पूरा सॉल्व किया है टीएन के फॉर्मूला से और आपको ये समझ में आ जाएगा। ओके, अब हम बढ़ते हैं आगे की तरफ। दैट इज द सम ऑफ nth टर्म। ओके, दिस इज द न्यू कंसेप्ट। अब ये कंसेप्ट जो है ना, इसके पीछे ना जो एक छोटा सा बच्चा था जिसका नाम था कार्ल गॉस, हु बिकेम अ बिग मैथमेटिशियन। तो यहाँ पर अब हम देखने वाले हैं सम ऑफ nth टर्म, दैट हाउ टू डू द सम। ओके, अभी तक तो हमने क्या फाइंड आउट किया था? हाउ टू फाइंड द nth टर्म इन एन एपी, हाउ टू फाइंड द पोजीशन ऑफ एनी टर्म। ओके, दिस ऑल वी हैव फाइंड आउट। ओके, अब हम देखते हैं सम ऑफ nth टर्म। nth टर्म, व्हाट डज इट मीन? ओके, इसका मीनिंग क्या होता है सम ऑफ nth टर्म? ओके, फॉर एग्जांपल I gave you an AP that if I will told you like do the sum of first 100 number, first 100 number, first 100 नेशनल नंबर, तो अब मैंने आपको क्या बोला है कि आपको 1 से लेके आपको 100 तक ऐड करना है। ठीक है, मतलब आप क्या करोगे, फिर आप 1 में प्लस करोगे 2, 1 + 2 3 हो गया, फिर 3 + 3 6 हो गया, 6 + 4 10 हो गया, 10 + 5 15 हो गया, 15 + 6 21 हो गया, 21 + 7 28 हो गया। इस तरीके से आप करते जाओ। Yes, it is possible, but it will take a lot of time and a lot of concentration. If you will do a small mistake, the whole answer will be wrong, है ना? बहुत concentration लगता है, बहुत कुछ लगता है। तो ऐसा ही एक इंसिडेंट है जो आपको पेज नंबर 67 पर दिया हुआ है। कार्ल गॉस, ये एक बच्चा था, इसने क्या किया, इस चीज को बहुत इजी कर दिया कार्ल गॉस। उसके टीचर को कुछ काम था, टीचर ने क्या कहा बच्चों से, ऐड द नंबर फ्रॉम 1 to 100। ओके, थोड़ी देर बाद एक बच्चे की स्लेट जमीन पर आ गई एंड ही टोल्ड आई फिनिश माय वर्क। एज यू ऑल आर सेइंग व्हेन यू आर एट द लोअर लेवल, आप जब लोअर लेवल पे होते हो आपको कैसे बोलते हो, जब टीचर आपको कोई काम बोलती है एंड एज यू फिनिश योर वर्क वेरी एक्साइटेडली यू आर सेइंग आई फिनिश माय वर्क। तो बच्चे ने भी क्या किया कि उसने बोला यस आई फिनिश माय वर्क। टीचर वाज वेरी सरप्राइज्ड, टीचर को बहुत हैरत हुई that how he solved, because it takes a lot of time to add numbers from 1 to 100। okay, बहुत टाइम लगने वाला था। तो उन्होंने बोला ओके शो मी योर स्लेट, उस टाइम तो स्लेट चलता था, तो उन्होंने बोला कि ओके शो मी योर स्लेट, आई विल सी योर आंसर दैट हाउ यू हैव सॉल्व्ड। द आंसर वाज करेक्ट 50-50। she was also surprised that how the answer comes correct। then she saw her slate and she seen the pattern that how he has solved। so how he has solved, see basically what we are doing, हम क्या करते हैं कि हम ऐसे ऐड करते हैं 1 + 2 3 हो गया, 3 + 3 6 हो गया, 6 + 4 10 हो गया। इन दिस वे वी आर सॉल्विंग। लेकिन कार्ल गॉस ने क्या किया था, उसने 1 2 3 ऐसे पूरा 100 तक लिया। अगेन उसने क्या किया, नंबर्स को रिवर्स में लिया। ठीक है, फिर 100 लिया, ओके 99 98, ओके इस तरीके से उसने ऐसे 1 तक लिया, रिवर्स में लिया नंबर 1 2 3 से लेके 100 तक लिखा और 100 से लेके 1 तक लिखा। उसके बाद उसने क्या किया, इन दोनों को ऐड कर दिया, दोनों नंबर्स को ऐड कर दिया। द नंबर्स ही रिटन इन अ ascending order, then in the descending order। okay, 1 + 100 it will become 101। okay, 99 + 201, 98 + 301,
100 + 1 101, ऐसे पूरा उसका आंसर करेक्ट कितना आया 101 101 101 कितने टाइम्स आया 100 टाइम्स आया। क्यों 100 टाइम्स आया क्योंकि हम उसको 100 टाइम्स प्लस कर रहे हैं ना, 1 से लेके 100 तक नंबर होता है, तो 100 टाइम्स उसने ऐसा किया तो सबका आंसर कितना आया 101 आया। देन व्हाट ही डिड, उसने फिर क्या किया 100 और 101 को मल्टीप्लाई किया, क्योंकि 101 कितने टाइम्स आया था 100 टाइम्स आया था, 101 100 टाइम्स आया था, तो उसने क्या किया 101 को 100 टाइम्स किया, मतलब 100 से मल्टीप्लाई किया, सो ही गॉट 10100। अब ये क्योंकि इसने 2 टाइम्स किया था ना, क्योंकि ये उसको तो 1 से लेके 100 तक करना था, लेकिन इसने 2 टाइम किया, फिर उसने उसको हाफ कर दिया, उसको एक ही बार चाहिए था तो उसने उसको हाफ कर दिया, सो ही गॉट द आंसर 50 ये उसको मिला, द आंसर वाज करेक्ट। मतलब उसने इतने पूरे लॉन्ग टास्क को उसने बहुत सिंपल कर दिया। तो तभी से कार्ल लगॉस के इस मेथड के ऊपर रिसर्च की गई एंड देन दे फाउंड द फॉर्मूला टू ऐड द नंबर ऑफ टर्म्स, हाउ टू ऐड द नंबर ऑफ टर्म्स इन अ वेरी सिंपल वे। ओके, तो पहले हम देखते हैं ना कि हम उसको कैसे फॉर्मूले को इवॉल्व किया गया है, कैसे फॉर्मूले को फाइंड आउट किया गया, हम ये देखेंगे फॉर्मूला कैसे फाइंड आउट किया गया वो देखते हैं हम। तो सपोज करेंगे हम दैट टर्म्स आर a plus d a plus 2d, ये मैं नंबर्स नहीं लिख रही हूँ, आई एम राइटिंग द टर्म, ओके, क्योंकि जो हमारी फर्स्ट टर्म होती है वो a होती है, सेकंड टर्म जो होती है हमारी वो क्या होती है, फर्स्ट टर्म के अंदर जब कॉमन डिफरेंस को ऐड किया जाता है दैट इज आवर सेकंड टर्म, ओके, देन कॉमन डिफरेंस का ट्वाइस अगर हम ऐड करते हैं देन वी गॉट द थर्ड टर्म, ओके, सो इन दिस वे। एंड व्हाट इज आवर nth टर्म, nth टर्म हमारी होती है, हमने फॉर्मूला देखा है a plus n minus 1d, तो हमारी जो nth टर्म है, nth टर्म दैट इज a plus n minus 1d। सपोज ये हमारा एक एपी है, ये हमारा एक नंबर सीक्वेंस है जिसमें फर्स्ट टर्म है, सेकंड टर्म है, थर्ड टर्म एंड द लास्ट टर्म, ओके। उसके बाद क्या करना है हमको, हमको ये क्वेश्चन पूछा है कि ऐड ऑल दिस नंबर, ये पूरे नंबर्स को आपको ऐड करना है, तो हम भी क्या करेंगे, वी विल टेक द रिवर्स ऑफ इट, है ना। पहले हम क्या करते हैं एस एन लिखते हैं, एस एन सम ऑफ एन टर्म, एस एन का मतलब होता है सम ऑफ एन टर्म, सम इज एडिशन, दैट्स व्हाई एस इज देयर, एन सम ऑफ एन टर्म्स, so I will take a plus d plus a plus 2d plus then plus a plus n minus 1d। अब मैं भी ऐसे ही करूंगी जैसा कार्लो गॉस ने किया था कि उसको रिवर्स कर दूंगी और फिर ऐड करूंगी, तो मैं अब इसको रिवर्स लिखती हूँ एस एन, है ना। अब इसको रिवर्स लिखेंगे हम a plus n minus 1d, ओके, उसको रिवर्स लिखते जाएंगे तो हमको भी क्या मिलेगा a plus 2d a plus d a, ये मैंने रिवर्स लिख दिया है, ओके। रिवर्स लिखने के बाद मुझे क्या करना है, इसको ऐड करना है, जैसे कार्ल गॉस ने किया था कि पहले उसने पूरा सीक्वेंस में लिखा और उसके बाद उसने उसको उल्टा लिखा, है ना, रिवर्स में लिखा। तो रिवर्स में लिखेंगे तो हम इसको फिर अब क्या करते हैं, उसने फिर क्या किया था, दोनों को ऐड किया था, सो आई विल आल्सो ऐड, तो मैं a के अंदर इस टर्म को ऐड कर देती हूँ, पहले sn में sn ऐड करूंगी, so I will get 2sn sn plus sn 2sn। अब ये फर्स्ट टर्म को और लास्ट टर्म को मैं क्या करूंगी, ऐड करूंगी, a plus n minus 1d, है ना। उसने ऐसे ही किया था ना, उसने ऐसे ही किया था, ऐसे मुझे ऐड करते जाना है, या लास्ट में भी ऐसे ही आएगा, लास्ट टर्म क्या है हमारी a और इसका फर्स्ट लास्ट टर्म क्या है a plus n minus 1d। अब मैं इसको ऐड कर दूंगी, ठीक है, अब मैं इसको ऐड कर दूंगी, तो मेरा क्या आ जाएगा 2sn इज इक्वल टू a प्लस a कितना हो जाएगा 2a प्लस n minus 1
d, है ना? ये ऐसे ही आता जाएगा, ओके, ये ऐसे ही आएगा, यहाँ पर भी यही आएगा a प्लस a 2a प्लस n माइनस 1d। अब अगर ये पूरा nth टर्म के लिए लेते हैं, द होल क्वेश्चन, अब ये मैं बोलूंगी nth टर्म के लिए लो, तो आई विल मल्टीप्लाई दिस विथ n, 2sn इज इक्वल टू n के लिए लेना है फॉर n टर्म, तो मैं उसको मल्टीप्लाई कर दूंगी n से, 2a प्लस n माइनस 1t, ओके। अब ये 2 जो रहेगा यहाँ का डिवाइड करेगा, sn इज इक्वल टू n बाय 2 अंडर ब्रैकेट 2a प्लस n माइनस 1d। so this is the formula for sn. sn is equal to n by 2 2a प्लस n माइनस 1d। तो ये हमको, ये नहीं है कि हमको एग्जाम में आने वाला है दैट हाउ यू कैन इवॉल्वेट, ओके, कैसे आप इसको निकाल सकते हैं, डिराइव द फॉर्मूला फॉर sn, लेकिन आपको समझ में आना चाहिए, ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब भी आप बहुत सारी चीजें समझ सकते हो। जैसे यहाँ पर एक चीज समझ में आती है हमको कि मैंने फर्स्ट टर्म में लास्ट टर्म को ऐड किया है, देखो फर्स्ट टर्म में मैंने लास्ट टर्म को ऐड किया है, तो फर्स्ट टर्म मतलब t1 और लास्ट टर्म मतलब tn, सो वी कैन राइट द फॉर्मूला इन दिस वे आल्सो, हम इसको ऐसा भी लिख सकते हैं ना फिर, और sn इज इक्वल टू n बाय 2 अंडर द ब्रैकेट फर्स्ट टर्म t1 प्लस tn, क्योंकि हमने इसी को ऐड करके बनाया ना, फर्स्ट टर्म में लास्ट टर्म को ऐड किया है, ओके, तो हमने ऐसे किया t1 प्लस tn किया, तो वी कैन राइट द फॉर्मूला इन दिस वे आल्सो। तो हमको यहाँ पर दो फॉर्मूला मिल गए, sn इज इक्वल टू n बाय 2 अंडर ब्रैकेट 2a प्लस n माइनस 1d और sn इज इक्वल टू n बाय 2 t1 प्लस tn। तो ये इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन ये इंपॉर्टेंट है कि ये फॉर्मूला आया कैसे। तो दिस इज द फॉर्मूला ऑफ सम ऑफ n टर्म, ओके। यहाँ पर मैं आप लोगों को, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका, देखो यहाँ पर आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा फॉर्मूला 1 आपको दिया है, sn इज इक्वल टू n बाय 2 अंडर ब्रैकेट 2a प्लस n माइनस 1d, फॉर्मूला 2 sn इज इक्वल टू n बाय 2 अंडर ब्रैकेट t1 प्लस tn। अब यहाँ पर देखो हर एक में 4 क्वांटिटीज है, sn है, n है, a है और d है। So there are 4 quantities in the above formula. Out of 4, if any 3 are given, अगर आपको कोई 3 दी रहती है, then we can find out the fourth one. ठीक है, तो यहाँ पर यही दिया हुआ है कि किस तरीके से आप इसको फाइंड आउट कर सकते हैं। तो so there are the 2 formulas. You can take the screenshot of these 2 formula. अगर आपको फर्स्ट टर्म एंड लास्ट टर्म दोनों पता है, then it is very easy to solve the question on SN. Okay, Ashish, do you have any confusion? Ask. Ashish, unmute yourself. Ashish, otherwise lower your hand. Unmute yourself, Ashish, if you have any doubt. इसका फुल डेरिवेशन ना आपको दिया हुआ है बुक के अंदर, दैट हाउ टू डिराइव दिस फॉर्मूला, ओके। नाउ अब हम देखते हैं, सो आपने वो निकाल लिया होगा, आपको 2 फॉर्मूलेज मिल गए होंगे। अब हम देखते हैं हमारा प्रैक्टिस सेट 3.3, ओके। मैंने याद कर करे तो पढ़ाई चाहिए। Unnecessary, don't unmute yourself. If you have any doubt, then only ask. Okay, so practice set 3.3. Now we will start. That is based on the sum of nth term. So what is the first question, which is an activity?
जो कि एक एक्टिविटी है. व्हाट इज द एक्टिविटी? नाउ सी दैट. यहाँ पर आपको क्वेश्चन दिया हुआ है फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस. First term and common difference of an APR 6 and 3 respectively. Find S27. Okay, S27 आपको फाइंड आउट करना है. It is given in the activity format. So let me write the activity also. पहले यहाँ पर तो आपको जो दिया हुआ है Sn is equal to n by 2 under bracket box is given to you. It means that they are checking whether you know the formula or not. So if you know the formula, you can easily fill this. Then S27 is equal to 27 upon 2, 12 plus 27 minus 1. Then again box is there. Only in 4 steps they are completed, but when you will solve, it will not come in the 4 step. Okay. So this is an activity given to you. Okay, but हम इसको activities है, but we will not solve it in the activity format. हम इसको ऐसे solve नहीं करेंगे. मैंने आपको बताया था that how to do that any activity. पहले आपको क्या करना है? In your answer paper, write on this activity. Okay, 1, 2, 3, 4. 4 steps is given to you. Write on all the 4 steps as it is given to you in the question paper. Okay, just copy down. After that, solve it. अब आप किसको क्या करना है? Just forget about that. Okay, first solve it and then we will fill the boxes. Okay, so अब हम इसको समझते हैं just as a question. Okay, first term and common difference of an APR 6 and 3 respectively. First term is A is 6, D is 3, and S27 you have to find out. Means n का वैल्यू कितना है? 27 है, क्योंकि S27 आपको फाइंड आउट करना है. अब हम क्या करते हैं? फॉर्मूला लिखते हैं. Sn is equal to n by 2 अंडर ब्रैकेट a plus 2a plus n minus 1 d. ओके, ये हमने फॉर्मूला लिख दिया है. अब उसके बाद हम वैल्यूज पुट अप करेंगे. S27 is equal to 27 divided by 2, 2 into 11 plus 27 minus 1 into 3. हमने सब वैल्यूज को पुट अप कर दिया. d की जगह 3 रखा है, n की जगह 27 रखा है, a की जगह 11 रखा है. ओके, देन 27 upon 2. अब मैं इसको सॉल्व करती हूँ. 11 2s are 22 plus 27 minus 1 26. 26 into 3. हम इसको सॉल्व करेंगे. 27 upon 2, 22 plus 2, 6, 3 6 are 18, 3 2s are 6 and 1 7, 78. Then 27 upon 2. अब इसको हम प्लस कर देंगे. 22 plus 78 कितना हो जाएगा? 8 plus 2 10, 7 plus 3 9. Okay, sorry, yes. So you will get 27 upon 2 into 90, then 45. When you will do 27 into 45, you will get 1215. Okay. Now 27 into 45. अब ये हमारे पास पूरा कंप्लीट आंसर है. ओके, 2 6 are 12. यस, यहाँ पर ये हमारे पास कंप्लीट आंसर है. अब हम इसको क्या करेंगे? अब हम हमारी रिक्वायर्ड पोजीशन पर उसको क्या करते जाएंगे? प्लेस करते जाएंगे. ओके, अब सबसे पहले हमारा क्या था? n by 2 बॉक्स था. बॉक्स में क्या आएगा? 2a. So you will write here 2a. Okay,
देन 2 6 are 12, हमारे पास 12 आ गया था, प्लस 2 27 माइनस 1, यहाँ पर d की वैल्यू थी 3, यहाँ से उठाएंगे यहाँ पर रखेंगे, 27/2 इंटू, है ना, आपसे यहाँ पर था क्या आएगा 90, ये हमने लिख दिया 90 क्योंकि हमारे पास आया था ना, हमने पूरा फुल ब्रैकेट सॉल्व किया था तो हमारे पास कितना आया था 90 आया था, फिर हमने इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, देन वी गॉट 1250। तो ये इस तरीके से आपको सॉल्व करना है, आपको एक्टिविटी को एज इट इज कॉपी करना है, कॉपी करने के बाद आपको क्या करना है, आपको उसको अलग से सॉल्व करना है। अब देखो यहाँ पर वहां 4 स्टेप दिया हुआ था, बट सी हाउ इन हाउ मेनी स्टेप यू हैव सॉल्व, तो आप डायरेक्टली नहीं कर पाओगे, और मे बी इफ यू हैव अ कमांड ओवर इट बट स्टिल डू इट इन दिस वे ओनली। ओके, आपको कमांड है, मैं मानती हूँ दैट यू आर डूइंग अ लॉट ऑफ प्रैक्टिस, बट स्टिल डू इन दिस वे। ओके, टेक अ स्क्रीनशॉट, देन वी विल डू द नेक्स्ट क्वेश्चन। अब हमारा जो सेकंड क्वेश्चन है दैट इज find the sum of first 123 even natural number. Okay, find the sum of बहुत सिंपल था, ये एक्टिविटी बहुत बार पूछी गई है, सो जस्ट डू अ लॉट ऑफ प्रैक्टिस, बहुत बार पूछी गई है एक्टिविटी एग्जाम में। तो हमारा क्वेश्चन है फाइंड द सम ऑफ find the sum of first 123 even natural numbers। इवन है, याद रखना है, इवन नंबर्स आपको यहाँ पर एपी, पहले आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर आपको एपी फॉर्म करना है। ओके, find the sum of first 123 even natural numbers, so accordingly we will form the AP। AP क्या रहेगा आपका, इवन नंबर है 2 4 6 8 so on, ठीक है। अब आपको फर्स्ट 123 इवन नेचुरल नंबर्स आपको उसके फाइंड आउट करने हैं, मतलब आपका जो वैल्यू ऑफ n रहेगा दैट विल बी 123। ओके, तो यहाँ पर ये हमने एपी फॉर्म कर लिया है, अकॉर्डिंग टू एपी वी विल राइट डाउन a is 2, t1 is also 2, t2 is 4, t3 is 6, okay so on। ओके, अब हमको क्या करना है, d फाइंड आउट करना है, d is equal to t2 minus t1, that is 4 minus 2 you will get 2, so your d is also 2। तो आपके पास a आ गया है, d आ गया है, आपके पास जो n है ना that is 123 and you have to find out s123, आपको ये फाइंड आउट करना है s123, सम ऑफ फर्स्ट 123 इवन नेचुरल नंबर। तो हमारे पास अब देखो हमारे फॉर्मूले, मैंने आपको बताया था कि हमारे फॉर्मूले हमको 3 चीजें पता होनी चाहिए, देन वेरी इजीली वी कैन फाइंड आउट द फोर्थ क्वांटिटी। ओके, तो हमारे पास a है, d है, n है, मींस 3 क्वांटिटीज है हमारे पास and we have to find out the fourth quantity that is s123। so we will write down the first formula, Sn is equal to n by 2 under bracket 2a plus n minus 1d। so this is the formula। okay, ये formula है आपका, don't forget to write, then we'll put the values। s123 is equal to 123 upon 2, 2 into 2 है ना, हमारी a जो है 2 है, प्लस 123 minus 1 into 2, again d is 2। ओके, सबसे पहले आपको क्या करना है, ब्रैकेट को सॉल्व करना है पूरा, ये ब्रैकेट में आपको पहले इस ब्रैकेट को सॉल्व करना रहेगा, 123 upon 2, 2 2s are 4 plus 123 minus 1 122 into 2, पहले हम मल्टीप्लीकेशन करेंगे, so 4 plus 2 2s are 4
2 2s are 4, 2 1s are 2, 244. Now we will add this number, so we will get 248. So Sn is equal to 123 divided by 2, 248. अब हमको इसको क्या करना है, अब हमको इसको ओपन करना है ब्रैकेट को और इसको सॉल्व करना है। 2 से हम इसको कैंसिल कर देंगे, 2 1s are 2, 2 2s are 4, 2 4s are 8. We got Sn is equal to S123 is equal to 123 into 124. When you will multiply this number, you will get the answer 15,252. So S123 is equal to 15,252. आप इसको मल्टीप्लाई कर लेना, ओके? तो ये हमारा आंसर है। द सम ऑफ फर्स्ट 123 इवन नेचुरल नंबर। सबसे पहले आपको एपी फॉर्म करना है, आपको स्ट्रेस दिया गया है, इवन नंबर है, तो आपको इवन नंबर बनाने हैं 2 4 6 8। अगर ऑड दिया रहता है तो आप 1 3 5 7 लेते आप, ठीक है? आपको यहाँ पर इवन बोला था तो आपने उसके अकॉर्डिंगली क्या किया, एपी फॉर्म किया है। एपी फॉर्म करने के बाद हमने डी फाइंड आउट किया है बाय सब्ट्रैक्टिंग फर्स्ट एंड सेकेंड टर्म। देन हमने फॉर्मूला लिखा है, फॉर्मूला लिखने के बाद हमने सारी वैल्यूज को पुट अप किया है इसके अंदर एंड देन वी हैव सॉल्व। सबसे पहले आपने इसको इस ब्रैकेट को सॉल्व करना होगा। आप पहले इस पूरे ब्रैकेट को सॉल्व कर लीजिए, इसमें भी स्मॉलर ब्रैकेट को सॉल्व कर लीजिए। 123 में से 1 जाएगा, 122 122 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 244, देन यू विल ऐड द नंबर। आफ्टर दैट जस्ट सी वेदर इट इज डिविजिबल बाय 2 और नॉट। ओके, अगर ये डिविजिबल है तो हमने उसको सिंप्लीफाई कर दिया है, देन वी डन द मल्टीप्लिकेशन एंड देन वी गॉट द आंसर। वेरी इजी स्टेप, जस्ट फॉलो द स्टेप। ओके, एनी डाउट? कुछ डाउट है आपको इसमें? ओके, सो जस्ट टेक अ स्क्रीनशॉट एंड देन वी विल सी द थर्ड क्वेश्चन। ओके, तो हमारा थर्ड क्वेश्चन जो है वो भी बहुत इजी है। बस यहाँ पर आपको मैं कुछ क्वेश्चंस के बीच में डिफरेंस बताऊंगी, देन वी विल सॉल्व इट टुमारो। फाइंड द सम ऑफ ऑल इवन नंबर्स फ्रॉम, find the sum of all even numbers. Again even number is there between, देखो यहाँ पर आपको स्ट्रेस दे रही हूँ मैं, between 1 to 350। ऐसे क्वेश्चन जब आते हैं तो मैंने आपको कहा था कि पहले आपको क्या करना है, आपको एपी फॉर्म करना है। जब ये वर्ड आता है बिटवीन, तब आपको फर्स्ट नंबर और लास्ट नंबर आपको नहीं लेना है, नहीं लेना है आपको, क्योंकि इसमें एपी बहुत इंपॉर्टेंस रखता है। एपी बहुत इंपॉर्टेंट रखता है। आप इसका जब एपी बनाओगे ना, आपको बिटवीन दिया है। अब 350 जो है दैट इज द लास्ट नंबर। ओके, ये लास्ट नंबर है, इवन नंबर भी है वो, लेकिन आपको इसको नहीं लेना है। जब आप इसका एपी फॉर्म करेंगे तो आप कैसे लेंगे, 2 4 6 8 डैश डैश डैश। अब लास्ट में दो टर्म क्या आती है, 248 और 350। तो आपको, क्योंकि ये भी इवन नंबर है और ये भी इवन नंबर है, लेकिन आपको जब बिटवीन ये वर्ड आएगा तो जो लास्ट नंबर है वो आपको नहीं लेना है। मीन्स आपका जो फाइनल नंबर रहेगा वो 248 रहेगा। लेकिन अगर आपको क्वेश्चन आता है फाइंड द सम ऑफ ऑल इवन नंबर्स फ्रॉम, ये आता है फ्रॉम 1 to 350, जब ये आता है तब आपको फर्स्ट नंबर अगर इवन है तब भी ये लेना है और लास्ट नंबर भी। अब अगर मैं इसका एपी बनाऊंगी तो इसका एपी बनेगा 2 4 6 8 डैश 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 350, ये बनेगा। देखो दोनों के एपी में आपको डिफरेंस दिख रहा होगा कि लास्ट टर्म दोनों की क्या हो गई है, चेंज हो गई है, जस्ट बिकॉज ऑफ वन वर्ड। ओके, जस्ट बिकॉज ऑफ वन वर्ड।
अगर आपको बिटवीन आता है तो आपको लास्ट नंबर और फर्स्ट नंबर नहीं लेना है, और फर्स्ट नंबर तो हम ले भी नहीं सकते क्योंकि वो ऑड नंबर है। अगर फ्रॉम आता है तो आपको दोनों नंबर्स को लेना है, दोनों कॉर्नर्स को इंक्लूड करना है। ओके, अकॉर्डिंगली आपको क्या करना है, यहाँ पर एपी फॉर्म करना रहेगा। ओके, समझ में आया क्या ये? यस प्रणीता, प्रणीता, डू यू हैव एनी डाउट? आस्क योर डाउट। Ask your doubt. Pranita, unmute yourself. Okay, देखते हैं हम। If you are not asking the question, तो यहाँ पर देखो, अब इस टाइप का जब क्वेश्चन आता है तो यहाँ पर आपको क्या करना है, जो दिया हुआ है आपको फर्स्ट टर्म दिया हुआ है। यस, यहाँ क्वेश्चन में हमें फ्रॉम दिया है बेटा, वो ओल्ड बुक है। देखो दो टाइप की बुक होगी आपके पास, एक में फ्रॉम दिया हुआ है, बाद में उसका करेक्शन हुआ था, उसको बिटवीन किया गया था। करेक्शन है जिनके पास जो पुरानी बुक चल रही है उसमें फ्रॉम दिया हुआ है, और जिनके पास नई बुक्स आई है उसमें बिटवीन दिया हुआ है। तो आपको मैं दोनों तरीके सॉल्व करके बताने वाली हूँ, डोंट वरी अबाउट दैट। ठीक है, अगर आपको दोनों टाइप से क्वेश्चन आते हैं तो व्हाट विल बी आवर आंसर, तो मैं दोनों चीज को कंसिडर कर रही हूँ। ओके, तो पहले हम बिटवीन से देखते हैं, इसलिए मैंने आपको बताया ना, फ्रॉम और बिटवीन मैंने दोनों बताया आप लोगों को। तो यहाँ पर आपको दो स्टेप में सॉल्व करना है। पहली स्टेप होती है आपको ये फाइंड आउट करना है दैट हाउ मेनी नंबर्स आर देयर, क्योंकि आप लोगों से एक रेंज दी हुई है 1 2 3 50। तो यहाँ पर हमारे पास ए है 2, बी आप फाइंड आउट कर सकते हैं T2 माइनस T1 से, दैट इज 4 माइनस 2, दैट इज ऑल्सो 2। और ये जो है ना लास्ट वाला, ये आपका Tn है, Tn इज इक्वल टू 248, nth टर्म है, दिस इज द nth टर्म, ये आपका nth टर्म, ये फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, दिस इज nth टर्म। ये nth टर्म मतलब आपको Tn दिया हुआ है। ओके, और आपको क्या सम फाइंड आउट करना है, मींस यू डोंट नो n, आपको n नहीं मालूम है, आपको Sn नहीं मालूम है, दोनों नहीं मालूम। और मैंने आपको कहा था किसी के अगर आप Sn का फॉर्मूला यूज कर रहे हैं तो आपको 3 क्वांटिटीज मालूम रहना चाहिए, लेकिन यहाँ पर हमको सिर्फ 2 क्वांटिटी पता है, A और D। तो पहले आपको n फाइंड आउट करना पड़ेगा विद द हेल्प ऑफ फॉर्मूला Tn। ठीक है, इसके बाद आप n मालूम करने के बाद आप Sn फाइंड आउट कर सकते हैं। दिस क्वेश्चन we will do tomorrow because we don't have a time right now, so I'm going to wind up. So we'll see this question, both the type of question, between wala question bhi and from wala, okay, old and new both we will see. Okay, okay ma'am, can I wind up? Yes, yes. Thank you, Subha ma'am. Okay, thank you so much everyone, see you tomorrow.